ہاں جی، اب ان بھائی سے پوچھتے ہیں السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ثاقب نام ہے۔ تو آج کل جو حالات ہو رہے ہیں ملک کے، جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ کل لگ رہی ہے نا وہ آج لگ جائے، اچھا جو یہ غربت ہے ختم ہو جائے۔ انڈیا سے بہت تنگ آ چکا ہوں میں تو، یہ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ اٹامک بم تھا چھوٹا سا، ابھی اٹامک بم دونوں کے پاس بڑے بڑے ہیں، اور خدا نہ خاصہ یہ یوز ہوتے ہیں تو سوچے کتنی تباہی ہوگی۔ تو جی السلام علیکم ناظرین، آج کا ویلوگ کچھ ہٹ کر ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے کیا حالات ہوئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انڈیا والے بھی فل کھڑے ہوئے ہیں تیار، یہاں پہ پاکستان والے بھی فل تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور کافی گرما گرمی چل رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج میں ویلوگ کرنے والا ہوں، جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جنگ ہونی چاہیے یا جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کا ریئیکشن دیکھتے ہیں، لوگوں کا ریئیکشن انڈیا کے لیے کیا ہے، کیا جنگ اس کو ہونی چاہیے، کیا انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، کیا ملک کے حالات ٹھیک کر لینے چاہیے۔ اب یہ تو لوگ ہی بتائیں گے، مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اب میں چلتا ہوں لوگوں کے پاس، ان کا ریئیکشن دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو اب چلتے ہیں، پھر آپ سے دکھاتے ہیں لوگوں کا ریئیکشن دکھاتا ہوں۔ شاہ جی آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں وہاں پہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آج کل کے حالات کے کیا کہنا چاہتے ہیں جو پاکستان انڈیا کے بنے ہوئے ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یار یہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ بچہ سامنے غبارے سے کھیل رہا ہے نا، اچھا شام تک ہوا نکل جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ہمارا دھیان ہماری گورنمنٹ کا، ہماری جو آرمی فورسز ہے جی ان کا دھیان بٹانے کے لیے جی کہاں سے؟ کشمیر سے، اچھا ٹھیک ہے۔ بٹانے کے لیے یہ انہوں نے ایک چال چلی ہے اچھا جس میں امریکہ شامل ہے، اچھا اس میں انگلینڈ شامل ہے، اچھا اور انہوں نے اسلحہ بھی اس کو دیا ہے۔ امریکہ کا کام ہے کہ دو ملکوں کو لڑانا اور پرانا اسلحہ اپنا بیچنا، اچھا لیکن اللہ کی مہربانی سے، خدا کے فضل و کرم سے، اس کے پیارے نبی کی قدموں کی خاک کی وجہ سے اچھا انڈیا تو سمجھیں ہمارے حساب سے بچا ہے۔ اچھا یہ آپ اسی طرح سمجھ لیں اچھا کہ جیسے بابر اعظم ایک اچھا بیٹسمین ہے، جی اس کے مقابلے میں حسن علی ہے، جی بولر ہے وہ، جی ٹھیک ہے، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ جنگ جو میں نے دیکھی ہیں، 1965 کی جنگ دیکھی ہے، جو جذبہ تھا، اچھا ایک ٹیڈی پیسے کا اعلان تھا ایوب خان کا کہ اچھا ایک ٹیڈی پیسے کا آپ جو ہے نا شام کو ٹینک لے لیں۔ اچھا 13 کروڑ کی آبادی تھی۔ اچھا پھر 71 کی جنگ میں نے دیکھا ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم بارڈر پہ گئے ہیں، ان کی ایسی تیسی، اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 1.25 ارب کے قریب ہے، بالکل۔ اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے، اللہ کی مہربانی سے ہمارا اتنا طاقت ہے ہمارے اندر جی کہ یہاں سے ہم میزائل پھینکیں جی تو اس کے گھر گرتے ہیں، وزیر اعظم کے گھر، اچھا مودی صاحب کے گھر، اچھا ہاں، اور مودی صاحب کے آج کل رنگت اڑی ہوئی ہے، کبھی آپ ٹی وی پہ اس کو دیکھیں، آج کل اس کے پیچھے سردار اور جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر، اچھا وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اچھا پاکستانی فوج کی وجہ سے تو ہم آرام سے سوتے ہیں، بالکل یہ ہماری جو حکومت کی جو ترکیب چل رہی ہے، جو جس طرح یہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس یہ چل رہی ہیں، بالکل تو یہ انڈیا کی تو ہمت نہیں پڑنی، بالکل۔ اس لیے اب اس نے تھوڑا سا نا پیچھے ہٹا ہے۔ ابھی رات میں دیکھ رہا تھا کہ 2 جہاز آئے انڈیا کے، تو اچھا، ہمارے شیروں نے دونوں گرا لیے، کیا بات، اور ایک جہاز انہوں نے اپنے ملک میں ہی گرا لیا، انڈیا نے بکھلا کے۔ تو ان کے یہ پاک و ہند کی جنگ جو لوگ خوفزدہ ہیں نا کہ پاک ہند کی جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، ہم بچیں گے نہیں بچیں، یہ جنگشن کرنے کے وہ مزاج نہیں ہے، مزاج ہم نہیں ہے۔ تیار ہیں، ہمارا اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، یس، ان کا جو مرتا وہ آگ میں ویسے ہی آگ میں ہے، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اب اور لوگوں کا دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن ہے اس معاملے کے پیچھے۔
हाँ जी, अब इन भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब नाम है। तो आजकल जो हालात हो रहे हैं मुल्क के, जो जंग का सिलसिला चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जो जंग कल लगनी है ना वो आज लग जाए। अच्छा। कि जो ये गुर्बत है ख़त्म हो जाए। अच्छा। इसकी वजह से ये जो गरीब आदमी है जो कुछ रह जाएंगे वो जंग के बाद ये यैश की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अच्छा। ये हमारे माशाल्लाह शाह जी हैं जी जी। जिनका जो कहते हैं कि यार आज बिल बहुत आ गया, आज ये हो गया, जंग लग जाएगी, ये सब काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी कि मुल्क के बारे में कोई ख्याल नहीं आता, मुल्क के वहाँ बारे पे में जो कोई मर्जी हो जाए उस बारे में कुछ नहीं कहना कुछ चाहते आप? नहीं हम कहना चाहते, हम चाहते हैं कि गरीब आदमी जो है सुकून गरीब की आदमी ज़िंदगी की जिए, ज़िंदगी जो है वो आसान हो आसान हो जाए जाए। और ये आबादी कम हो जाए हमारी। जो बचेंगे कम से कम वो तो ऐश करेंगे। ये ऐश करेंगे। वो ईरान का बादशाह था, वो जा रहा था तो एक माली आम का पौधा लगा रहा था। ऐसे ही है। उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? सर आम का पौधा लगा रहा हूं। उन्होंने पूछा खाएगा कौन? उसने कहा ये मैं अपने लिए नहीं लगा रहा, जो आएंगे ये उनके लिए लगा रहा हूँ। अच्छा समझ आई? जी। तो जब कल लगती है आज लग जाए यार। ऐसे ही है, सही है ना। चलो। जो गरीब तबका रह जाएगा जंग के बाद वो तो वो ऐश ये करेगा। ऐश करेगा, यशी करेगा। उसको पता है यार अब तो कोई है नहीं, अब हम ही रह गए हैं। आपने इनका रिएक्शन देख लिया, अब आपको आगे भी रिएक्शन दिखाता हूँ सब। जी भाई, इसमें आपका कोई किरदार पाकिस्तान इंडिया की जंग में होनी चाहिए कि मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? बेजन जंग से मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते। अच्छा। मुल्क के हालात लीडर बेहतर करते हैं। अच्छा लीडर चाहिए, हमें अच्छे लीडर की ज़रूरत है। जंग से हालात ख़राब होते हैं, मज़ीद बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। तो ये जो बॉर्डर पे इतनी सिलसिले चढ़ी है, वहाँ पे भी गर्मा गर्मी हो रही है, यहाँ पे भी गर्मा गर्मी हो रही है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो ज़ुबानी बातचीत है, सियासी बयान है सबके, इधर से भी और उधर से भी। जंग लगती नहीं है, जंग लगाई जाती है। मोदी के खिलाफ कुछ अवाम है, इधर इनके खिलाफ कुछ अवाम है, तो दोनों ने आपस में मेल जोल कर लिया है कि चलो तुम्हारी अवाम को हम धोखा देते हैं, हमारी अवाम को तुम धोखा दे दो। बस ये तो गरीब को वो चक्रव्यूह दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो। बात एक ही है, आप जंग की बात करेंगे लोग कहें कि जब हमारा जो है ना हमारे लीडरों ने जवाब दे दिया इंडिया को, हमारे लीडरों ने ये बयान दे दिया, हमारे लीडरों ने वो बयान दे दिया। बयानों से कुछ नहीं होगा भाईजान। और दूसरी बात, जंग की अगर जंग लगनी होती तो इंडिया ने बता के थोड़ी लगानी थी कि हम जंग लगा रहे हैं भाई। हमला जो है वो बता के थोड़े करता है। बिल्कुल। दुश्मन जब भी हमला करता है वो तो तब करता है ना कि जब अगला बंदा जो है ना वो इजी बैठा हो तो तब वो वार करेगा, वो बता के थोड़े करेगा। बिल्कुल। ये मुसलमान थोड़ी है कि जो बता के करेंगे वार। मुसलमान बता के वार करता है, जो काफिर होगा, जो गैर मुस्लिम होगा वो बता के नहीं करेगा वार, वो आपकी पीठ पीछे वार करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये जंग बंग जो है ना वो ये कुछ भी नहीं है, ये सब आंखों का धोखा है। अच्छा। और ये लोगों को जो है ना वो समझ ले कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बाकी हमारी फ़ौज जो है वो इंशाल्लाह बॉर्डर पे खड़ी है, हमारे नौजवान खड़े हैं, हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं। अगर जंग लग भी जाती है ना तो हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, फ़ौजी जवानों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह। फौजी जवानों की बात कर रहा हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारी जान की ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क को, वो भी हम हाज़िर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिस आ गया हूँ, ऑफिस में कुछ कुलीग से पूछता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के क्या हालात हैं, क्या होना चाहिए, इनके रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक। काबिज तो भाई, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान इंडिया के हालात चाह रहे हैं? इंडिया से बहुत तंग आ चुका हूँ मैं तो। ये देखें कितना जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ। जी जी। तो ऊपर से पाकिस्तान के साथ भी जो है इनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाह रहे। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत तंग आ चुका हूँ इंडिया के लोगों से और इंडिया के मोदी जो है सरकार। अच्छा। तो मैं तो बिल्कुल इनसे नाखुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हमीद भाई, क्या हाल है? ठीक है सर। आपका इंडिया के बारे में क्या रिएक्शन है जो आजकल गर्मा गर्मी चाह रही है, बड़ा ये बोल रहे हैं? ये गर्मा गर्मी कर रहे हैं तो हमारे पास आएंगे तो हम इनको बता भी देंगे कि ये कोई इजी तो नहीं ले रहे हमें। बिल्कुल। छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, हम पाकिस्तानी हैं यार। अच्छा। वापस नहीं जाएंगे जो पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो ये इंडिया वाले। अल्लाह का शुक्र है इतनी एटमी पड़ी है पाकिस्तान के पास। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बैठा हुआ कि ये आएंगे तो मार के या फायरिंग करके जंग लड़ के चले जाएंगे, इतनी जल्दी चले जाएंगे। नहीं नहीं, इधर से वापस नहीं जाएंगे पाकिस्तान की तरफ, इधर पे नहीं आ सकते ये। अच्छा। आगे आने की हिम्मत ही नहीं इनके पास। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे ये। इनका रिएक्शन भी बहुत हार्ड है। काफ़ी लोगों से सवाल जवाब कर लिए, रिएक्शन पूछ लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के क्या मामला चाह रहे हैं, आप लोग उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अब लास्ट एक पर्सन है जो बड़े अजीज़ हैं, वो उनसे पूछते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है पाकिस्तान
اور انڈیا کے لیے. جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. वाजिद भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. खैर आप खैरियत से सुनाएं, हैं? ठीक हैं, सब जी खैरियत जी अल्लाह का शुक्र. तो सर क्या कहना चाहते हैं जो आजकल हालात बने हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, दोनों तरफ गर्मा गर्मी हुई है. देखें जी, कोल्ड वार तो ऑलरेडी चल रही है और बाकी अगर वार मुसल्लत होती है पाकिस्तान पे तो हम भी रेडी हैं और हमारी आर्मी भी रेडी है. और खुदा न खास्ता ये सिचुएशन बनती है तो भाई फ़ौज के शाना बशाना हम लोग खड़े हैं इंशाअल्लाह. और इंडियंस के लिए या फिर वो हजरात जो कि हम पे जंग मुसल्लत करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनके आइडिया के लिए बताता जाऊँ कि वो उन लोगों से पंगा ले रहे हैं या उस कौम से पंगा ले रहे हैं जो कि इस काम को अफजल तरीन इबादत समझती है. और अगर इस जिहाद में हिंदुओं के ख़िलाफ़ या फिर गैर मुस्लिमों को ख़िलाफ़ या फिर अपने वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान भी दे दें तो उसको वो अफजल तरीन मर्तबा समझते हैं. तो प्लीज़ अगर वो लोग कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि हम पे जंग मुसल्लत करें तो काइंडली एक दो बार सोच ले अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी जंग वो नहीं होएगी कि एक गोली उधर से चलेगी एक गोली इधर से चलेगी. अब तो भैया बटनों की जंग होगी, मिसाइल इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे. और मिसाइलों पे आपको पता ही है अभी तो एटॉमिक पावर्स भी हैं, दोनों मुल्क एटॉमिक पावर्स हैं. और खुदा न खासा है ये लोग एटॉमिक यूज़ करते हैं बॉम्ब्स तो तबाही और तबाही होएगी उधर भी इधर भी. बिल्कुल राइट. सिर्फ मैं आपको छोटा सा अंदाजे के लिए बताता जाऊँ, 1945 में मतलब मेरी और आपकी पैदाइश से पहले, मेरे के अब्बा जी की पैदाइश से पहले, दादा अबू के दौर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला किया था. तब छोटा सा बम इन्होंने गिराया था और विद इन 1 सेकेंड उस बम ने उस पूरे शहर को तबाह कर दिया था. अच्छा. इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया था, 40,000 सेंटीडिग्री ग्रेड था. अच्छा. अभी इधर 40 सेंटीडिग्री ग्रेड हो जाए तो हमारी बस हो जाती है, तो 40,000 सोचे कितना होगा. बहुत ज़्यादा होगा. विद इन 1 सेकेंड लाखों इंसान जो है वो गल गए, जल गए, उनकी हड्डियाँ तक जल गई, इमारतें जो है वो पिघल गई. बिल्कुल. तब एटॉमिक बम था छोटा सा, अभी एटॉमिक बम दोनों के पास बड़े बड़े हैं और खुदा न खास्ता ये यूज़ होते हैं तो सोचे कितनी तबाही होगी. तो मेरी तो यही है कि भाई जो भी मामलात है सुलह सफाई से हल करें, जंग की तरफ ना आए. लेकिन अगर वो लोग जंग मुसल्लत करते हैं तो हम तैयार हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. आपने सब बंदों का रिएक्शन देखा है, सब बंदों का रिएक्शन क्या था. आज का व्लॉग इसलिए था कि थोड़ा सा मामला जान लिए जाएँ कि क्या मामला करने चाहिए. तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक अच्छी की वीडियो के साथ. ओके बाय.